आयो फिर आयो क्या बात श्री विवेकानंद जी ते भरत पांड्या जी हाँ हाँ आनी आनी फोटो सारे संतां की फोटो आनी जेड़े आए ने जय श्री कृष्ण अंदर छड्डिया ना बंदा कृष्ण जय श्री अंदर छड्डिया ना गुरु जी अपने गुरु जी आ गए हो हाँ हाँ जी हाँ जी क्या बात नहीं उत्थे तक छड्डे गुरु जी आ गए हाँ हाँ बना रहे ये गुरु जी अपने ये साडे गुरु जी देखी होएगा से हाँ दे हर साल आते ने फिरोजपुर सुनो वाले ते नहीं है 100 साल की उम्र है विजयानंद ते एक केड़े नंद राम लक्ष्मण जड़े आंदे हुंदे सी उन्हां चों ते नहीं है नहीं नहीं ये हरिद्वार तो आते ने बनारा धर्म संघ पीठा शंकर देव चैतन्य बाजा वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये है पंडाल गुरु साहब मंडी गुरु साहब का। यहाँ सब अंदर जोड़े जुतियां नहीं लेके जानिया, शूज नहीं लेके जाने अंदर। पीढ़ी जा रब्बा रहन दो रब्बा पाई रखी 13 याद रखो 13 बाबे दी 13 ही तरीक है। नंबर भी 13 मिले तरीक भी 13 बाबे दी 13 ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। लो जी आओ जी आओ चलिए अपन ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਆਏ ਸੁਣਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ये पंडाल ਇੱਥੇ ਲਾਂਦੇ ਬੈਠੀਆਂ चलिए आगे चलिए आयो
आयो आयो ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ Om Tan Jam Mare Pramchan Guru Ganja Damrada Tena Deva Ayajanda Sabhya Gayatade Narayaya Swaha Om Jat Guru Kambya Dado Kadidabhya Kalpayana Mugangi Mujal Siddhim Bahu Gimoro Pada Uchede Narayaya Swaha Om Brahmano Sanghama Chitpa Urajanya Grada Uruda Jataisha Bhagutondra Ajayata Narayaya Swaha Om Brahmano Sanghama Chitpa Urajanya Grada Uruda Jataisha Bhagutondra Ajayata Narayaya Swaha Om Chandrama Manaso Yadakyo Dhutyo Ajayat Yodhama Sadara Samha Bhagiraya Jata Narayaya Swaha Om Nabhya Adinandar Jado Kirnabhya Bhuta Pranam Bhakti Sogramana Loga Kalpayana Narayaya Swaha Om Japuru Veda Habikau Deva Jnamadan Vat Bhajando Chauchi Dajang Rik Bhajdva Dhartavi Narayaya Swaha Om Sata Sajan Bhavati 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 महाविष्णु जग हो रहा वाह जी वाह क्या बात पार्वती जी के परिवार च ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੱਗ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ महाविष्णु जग ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪਰ ਯੱਗ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਗੇ ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਅੱਜ 5 ਘਾਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ Om Dado Pirada Jaya Pirado Adipurita Sajato Apyarita Pura Narayaya Swaha Om Tasman Danya Sarpahuta Sampredam Prikadacham Pasustam Chakre Pajapyana Ranyam Ramya Shade Narayaya Swaha Om Tasman Danya Sarpahuta Richa Javani Jani Nanda Kuthi Jani Re Tasman Jadu Tasman Jayata Narayaya Swaha Om Tasman Tasman Ajayanta Jeke Chobhaya Dada Tabo Bhajani Re Tasman Tasman Chata Ajabhaya Narayaya Swaha Om Danjam Bare Prauchan Buru Kanja Damangrada Tena Deva Ayajanda Datyar Gaishaye Narayaya Swaha Om Japuru Kambya Dado Kadidabhya Kalpayan Mukhangi Masha Shitkim Baho Gemoro Pada Uchete Narayaya Swaha महाविष्णु याग हो रहा है महाविष्णु याग Urudan Jadvaisha Padbhagushodra Ajayata Narayaya Swaha Om Chandrama Manaso Jata Chaksho Surjo Ajayat Sodrakvaja Saprana Samha Nirajayata Narayaya Swaha Om Nabha Adhidanda Chakothi Kopyahu Namamadan Pradyanto Madhya Prodrakana Narayaya Swaha Om Japuru Veda Habikave Bhaganyamadan Vajanto Jashila Jamri Bhajmaha Kartavi Narayaya Swaha Om Sapta Sajan Paridhaitre Sapta Jamidha Krita Deva Jajatan Vana Abadhan Purugam Padumba Narayaya Swaha
ओम चितेन नंदमाय झंडदेवासानि धर्माणि प्रथमान्नाथं देहनागं महिमानः सचन्दद्रपूर्भे साध्या सन्ति देवाः नारायणाय स्वाहा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः ਤਿੰਨ भूमिकों सर्पदस्पत्यादिष्टसदाङ्गुलं नारायणाय स्वाहा ओम पुरुष एक और कर लीजिए। तीन पूरे कर लीजिए। नारायणाय स्वाहा ओमेकावानुषमहिमादो जायाष्टपूर्ग मादो भूतानि त्रिपादश्यामृतं देवी नारायणाय स्वाहा ओम त्रिपादोर्भ उदय पुरुष ਇਹ ਮਹਾਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ अभि नारायणाय स्वाहा ओम तदो पीराद जायत पीरादो अधिपूर्व अजातो जलजापशा भूमिमदो पुरः नारायणाय स्वाहा ओम स्वांगन्या सपहुता धम्रयां मृगदाभ्यं पशुसागरे पायज्ञानारण्या ग्राम्याक्षरे नारायणाय स्वाहा ओम स्वांगन्या सपहुतरिजा धामानि तन्निर छन्दा कुशिजन्निरे तस्मात् जायत नारायणाय स्वाहा ओम तस्मात् अजायन्त देवेषु अयानुना आपो भन्निरे तस्मात् अजापयः नारायणाय स्वाहा ओम तन्त्रम्बरे प्रोक्षन् पुरुखन् जातमङ्गत तेन देवा अयजन्त दभ्यारिखैस्तजे नारायणाय स्वाहा ओम चपुरुखं व्यदनुः गदिधाप्यकल्पयन् गहन्निमशांसिद्धिं बाहो विमोरोपादा उचेत् नारायणाय स्वाहा ओम ब्राह्मणो संभमाशित् बाहुराजन्यः मृता ऊरुदर्शनपैक्षापतिभ्याङ्कुशूद्रो अजायत नारायणाय स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्पादशप्राणसमुखादमीन जायत नारायणाय स्वाहा ओम नाभ्या आसीदन् आजो 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 इधर ना ले अंजले आ लो जी ले आओ ले आओ ले अंजले को ले हेलो ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ हैं अब सारी मूवी बनावांगे ਤੁਹਾਡੀ बनाओ बनाओ गुरु साडा पिंड नाल इत्थे एक मिश्री आ ਅੱਛਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ स्टेशन लगदा ना ठीक है, अच्छा। साडे इत्थे गुरु साईं ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਦਿਖੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏਗੇ ਇਹ ਸ਼ੀਰੀਆਂ आज ही हमारे आचार्य जी कुलवाचार्य भी आए हैं, विद्वद्गण और प्यारे भक्तगण, श्रद्धामयी बहनें, बाल गोपाल, एक वेदों में उपनिषदों में मंत्र आता है, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। कहते परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए या आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए दो की भक्ति करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और महात्मा की भी भक्ति करना चाहिए। कहते परमात्मा क्या देते हैं और गुरु जी महात्मा क्या देते हैं।
वैसे तो ये दोनों कल्याण कर देते हैं, फिर भी समझाने के लिए इस संदर्भ में भगवान ने जैसे शुभाशुभ कर्म जीवों ने किए हैं, भगवान वैसी योनियों में भेज देते हैं। भगवान बोले मैं क्या करूं, इन्होंने ऐसे कर्म किए जो अच्छे नहीं हैं, तो हमें इनको निम्न योनियों में भेजना पड़ रहा है। और अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान देवी देवता स्वर्ग भेज देते हैं। भगवान को इसमें लेना देना नहीं है, जैसा जीव करता है वैसा भोगता है, तो भगवान तो भेज देते हैं। कभी देवी देवता बन जाता है पुण्य से, कभी मनुष्य से नीतर पशु पक्षी भी हो जाता है जीव। मिश्रित अगर कर्म शुभाशुभ है तो मनुष्य शरीर मिलता है। तो भगवान तो गीता में कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्थै भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तते मनुष्यापार सर्वश। जो जैसा मेरे को चिंतन रखते हैं, भजन करते हैं या जैसी मांग रखते हैं, वैसा ही उनको मैं फल दे देता हूँ। तेरे दरबार आली की निराली शान ने देखी, तेरे दरबार आली की निराली शान ने देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काट के देखा। बढ़ाया जिसने अपना कर, तेरे दरबार में मालिक तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। भगवान झोलियां भर देते हैं। लेकिन इसमें भी मनुष्य जीवन में घाटा ही रहता है, क्योंकि जो झोलियां भरते हुए चीजें नाशवान होती हैं। इसलिए ऐसी चीज मनुष्य शरीर को प्राप्त करके करना चाहिए जिसका कभी नाश न हो। ये भोग की चीजें भगवान देते हैं पुण्य से, लेकिन इनका नाश हो जाता, शरीर छूटा तो कोठियां भी छूट, सबका अनुभव है। बाल बच्चे छूट जाते हैं, कोठियां कारें छूट जाती हैं, सब कुछ चला जाता है। ऐसी वस्तु हो जो साथ में रहती, कभी जाती नहीं हो, ऐसी वस्तु भगवान का आत्मा का ज्ञान है और भगवान का प्रेम है। ये चीजें मरने पर भी छूटती नहीं, यानी भगवान की भक्ति का नाश नहीं होता और आत्मस्वरूप के ज्ञान का भी नाश नहीं होता। ये अविनाशी चीजें हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है। गीता में आया यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाजुकम तथा, यानी भगवान के प्रेम के समान, आत्मतत्व के ज्ञान के समान कोई लाभ दुनिया में नहीं होता। इसीलिए साधु महात्मा माया को ज्यादा महत्व दे करके माधव को महत्व देते हैं। हालांकि भजन से भी माया पीछे पड़ती है, लेकिन संत माया को ज्यादा महत्व नहीं देते, आती है उनके पीछे, तमाम आती है। कहते हैं माया को सब कोई भजे, सब चाहते मेरी उन्नति हो, धन मिले, विद्या मिले, परिवार मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये लौकिक लोग सब चाहते हैं। लेकिन इसमें घाटा भी रहता है। ये ब्रह्म विद्या है, सत्संग है, क्योंकि ये चीजें छूटने वाली होती है, स्थायी नहीं होती, क्षणभंगुर है, नाशवान चीजें। तो माया को सब कोई भजे, माधव भजे इनको, और जो माधव को भजत है माया चेरी हो। जो माधव को भजन करते हैं, भगवान से कुछ मांगते नहीं और रात दिन भजने में लगे रहते हैं, तो क्या होता, माया उनके पीछे आती, चेरी बन जाती, लक्ष्मी उन्हें छोड़ती नहीं। हालांकि वो लक्ष्मी को चाहते नहीं, चाहते तो भगवान को, पर लक्ष्मी जी खुश हो जाती,
लक्ष्मी जी कहती होंगी मेरे पति को चाहता है, चलो इसके पीछे जाइए। अच्छा लक्ष्मी को चाहे, रात दिन लगा रहे और ठाकुर को भूल जाए, तो लक्ष्मी कहती होंगी ये मेरे पति को तो नहीं चाहता, मेरे को चाहता है। तुलसी नारी गरीब की, तुलसी नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, प्रभु पत्नी अपनी कहे क्यों न फरियत हो। जो कहते मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरी कार, मेरी कुर्सियाँ, ये लक्ष्मी का भजन करते हैं, तो लक्ष्मी माँ इनसे नाराज होती, आती तो है परंतु वो सदा सात्विक रूप से साथ नहीं दे पाती। इसलिए भागव माधव को भजन करो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। केवल हेरे फेरी से नहीं आती है, भजन से भी आती है। अब देखो सुदामा का चरित्र आपको सुनाए, भागवत के अंतर्गत है। सुदामा रात दिन कन्हैया कन्हैया पुकारता है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बजाऊं लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे बांके बिहारी। चरण चित जो इनका हम धारा करेंगे, चरण चित जो इनका हम धारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अब कहने का अभिप्राय सुदामा ऐसे ही पागल था, बहुत भगवान का नाम दिन भजन करता था, कोई उसे खिला दे तो खा लेता था, नहीं वो टाइम पर भोजन भी नहीं करता था, पर रात दिन कन्हैया के प्रेम में मस्त झूमता था। उनके घर में उनकी देवी सुशीला नाम था, भागवत की कथा है। सुशीला ने कहा आप कन्हैया कन्हैया जपते हो, रात दिन पागल बने बैठे हो, अब घर में तो टूटा तबा फूटी कठौती है, रहने के लिए बढ़िया नहीं, छप्पर भी चू रहा है, कैसा है, कोई आ जाए तो उसे बिठाने को जगह भी नहीं है सरकार, तुम्हारा कन्हैया कन्हैया तुम तो जपते रहते हो। सुदामा बोला जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राम कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, रखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला प्यारे राम तेरे साथ में, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का त्याग शुभ काम करते रहिए, फल यश त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। यानी भगत कहता है जो भगवान जैसे मंगलमय विधान से मेरे को देंगे सुख या दुख, हम प्रसाद मान के उसको धारण करेंगे। तो सुदामा
इसी प्रकार के भक्त हैं, अकिंचन है, अचाह है, तो ठाकुर से भी कुछ मांगते नहीं है, केवल ठाकुर जी का निष्काम भावेन भजन करते हैं। सज्जनों, सकामता संसार की है, निष्कामता भगवान की है। जिस जन्म में आपके निष्कामता आ गई, उसी जन्म में कन्हैया मिल जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप देखिए महाराज सुदामा निष्कामता में कितनी शक्ति। भागवत का प्रतिपाद्य विषय निष्काम भक्ति ही है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं। लाभ हरि भक्ति समाना, यही गावे सुख संत पुराना। हाँ लेकिन नहीं ये सब कुछ भाई, भजन राम नर्तन पाई। यानी मनुष्य का शरीर बाल बच्चों के लिए, धन के लिए नहीं मिला है, कोठीकारों के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। क्यों अन्य जोनियों में भी बाल बच्चे होते हैं। अन्य जोनियों में भी मैंने देखा कि जानवर लोग हिमालय में गुफाओं में ऐसी बढ़िया बनाते हैं, जैसी कोठी को इतनी मजबूत नहीं होती। हम रहे हिमालय गुफाओं में। यानी ये तो अगर कोई करे कि तरक्की हुई तो पशु पक्षियों के भी होते हैं। मनुष्य को भगवान ने बनाया अपने लिए कि ये तो मेरे को भी प्रेम करेगा और विचार करेगा तो मुक्ति भी हो जाएगा। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर भजन के लिए है। भागवत में मनुष्य शरीर संसार की उन्नति के लिए, वो तो और पशु पक्षियों की भी होती है। अगर मनुष्य वही करता है, ईश्वर को ध्यान नहीं करता है, तो उससे तो पशु पक्षी बढ़िया है। इसलिए बड़े भाग मानुष बाबा सब ग्रंथन गावा। आज का प्रवचन है कि अगर आप निष्काम भजन करेंगे तो लक्ष्मी भी आएगी और नारायण भी आएंगे। तो सुदामा भागवत में निष्कामता की ही महिमा गाई है। उसका प्रतिपाद्य विषय निष्काम भक्ति है, निष्काम कर्म है। जब देखा कि सुदामा घर में कुछ नहीं है और ब्राह्मणी ने, तुलसीदास ने कहा कि आप कहीं मांगे लाओ, तो आप तो ब्राह्मण हो और आपके नारायण आजकल द्वारिकाधीश हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। उनसे जाओ और मांग कर ले आओ। कुछ जाकर सुदामा बोले, देखो सुशीला, हम उससे मांगने नहीं जाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राम ताहे विधि रहिए। वो नहीं कुछ देता है तो ना दे। निष्काम भक्ति है सुदामा। तो देखो उन्होंने कहा फिर क्या करें, कैसे रहें इस घर में भाई। तो सुदामा ने कहा चलो तू मेरे को बार बार कहती तो अक्षत ले आओ। बोल कन्हैया है तो मेरा छोटा भाई मित्र है, लेकिन राजा है, वो राजा के दरवाजे पर रिक्त हाथ नहीं जाना। ले आई वो। देखो सुशीला भी कम नहीं है। आजकल की होती लड़की तो इस तलाक दे देती, मार डाला भूखों से। सुशीला भी महात्मा है, जिन्होंने अपने ऐसी स्थिति पर भी पति का साथ नहीं छोड़ा। सुदामा साधारण नहीं है। यानी गरीबी में भी अपने पति को श्रद्धा प्रेम करे तो समझो पतिव्रता है। जब सब चीज है तब वो करे तो वो है, पतिव्रता नहीं है। पति जैसे हो वैसा हो और उसी में राजी रहे, वो पतिव्रता स्त्री होती है। तो सुशीला भी पतिव्रता है, अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, भूखों मर गई बेचारी। लेकिन सुनो, सुदामा जब अक्षर लेकर गए तो ठाकुर जी को भेंट किया। ठाकुर जी बोले, अरे बड़े दादाजी, देवी जी ने क्या क्या भेजा है, हमको भूख लगी है। देखा तो सुदामा तो बड़ी हाय गरीबी बड़ी बलाए, ये तो छप्पर व्यंजन छकाता है, हाय हम क्या ले आए। सुदामा पोटली को छुपा रहे हैं, हाय गरीबी बलाए, देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदन सीधी ना दे। तो महाराज सुदामा छिपा रहे।
कन्हैया ने कहा दादाजी दिखाओ तो छिपाते हो। देखा तो चावल है, मार दिया खोली और मार दिया। आहा, बड़ा मीठे चावल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक अंजलि और रह गई तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज ये साधु ब्राह्मणों को सब दे रहे हो, अपने लिए रखोगे कि नहीं? कम लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने, नहीं तो ठाकुर तो सब दे रहे थे। अच्छा भाई, सुदामा तो सो गए, कुछ दिया नहीं। सुबह सुदामा चल पड़े तो देखो सज्जनों, आज का प्रवचन दिखा के या प्रदर्शन करके नहीं देना चाहिए, उसमें पुण्य घट जाता है। भगवान ने दिया तो दिखा करके नहीं दिया। सुदामा जा रहे हैं, महाराज विश्वकर्मा को इंजीनियर बुलाया, देवताओं वाला इंजीनियर। कहा मेरे बड़े भाई संत हैं, इनकी कोठी ऐसी बनाओ द्वारिकापुरी, उससे एक नंबर सुदामापुरी और बढ़िया संगमरमर, और ये 5 है 7 मंजिल बनाओ। जब तक सुदामा गए तब तक महाराज ब्राह्मणी तो पूरी झोपड़ी में बैठी थी। सुदामा बोले कोई वन्य पशु खा गया, बेचारी है नहीं। लेकिन वहाँ कमांडर लोग, ब्रिगेड कमांडर लोग, तमाम फौज पुलिस लगी है। सुदामा ने पूछा कि हमारी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ है? कहा महाराज देखो 7वें मंजिल पर। तो देखो भगवान, आज का प्रवचन है कि भागवत का मुख्य विषय निष्काम भक्ति है। जब निष्काम भक्ति होगी तो कितना मिला, यानी लक्ष्मी का पति पैर भी धो रहा है और लक्ष्मी जी मारी मारी घूम रही है। यानी निष्काम भजन में लक्ष्मी भी आती है और नारायण भी आते हैं। इसलिए भक्तों को भजन करें, कुछ न मांगे तो उन्हें भगवत प्राप्ति इसी जन्म में अभी हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। और लक्ष्मी अपने आप आएगी और बिना झूठ बोले आएगी, बिना कपट करे आएगी, बिना मिलावट करे आएगी, लक्ष्मी खूब आएगी। इसलिए भगवान बोले वचन कर्म आज का प्रवचन, भजन करें निष्काम। जो मेरे निष्काम भजन करते हैं उनके पीछे मैं रहता हूँ। गांठी में बांधे नहीं, मांगन में सब चाहे, तिनके पीछे हर फिरे को भूखे ना रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आपने भागवत सुनी, ये प्रवचन सुना कि भगवान से मांगने में भगवान चीजें देते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति में विलम्ब हो जाता है। और ऐसे भगवान अभी अभी मिलेंगे, देर नहीं है। सुदामा को उसी समय मिले भगवान, तो हमें आपको भी निष्काम भजन करने से भगवान इसी जन्म में अभी अभी मिल जाएंगे। आज का प्रवचन बोले गीता माता की जय, प्रेम से बोलो वेद भगवान की जय। और प्यारे सभी पूज्य सभी संतों की जय हो, प्यारे सभी भक्तों की जय हो, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।